Dear students, now it will start the second portion of chapter 3rd, Nazism and Rise of Hitler. The title of this portion is Hitler's Rise to Power. हिटलर कैसे एक शक्ति के केंद्र के रूप में, एक पावर के रूप में उसका उदय हुआ. This is the topic of this chapter. Let's start of detailing. The crisis in economy we have already studied due to the financial compensation, war guilt made by the Allied forces as a liability on Germany, and also by the Great Depression when the Americans withdraw their investments in Germany. So the crisis of economy and political and social formulation have provided the base for the rise of the Hitler, because the problems, the sufferings providing the situation to create, make Hitler as a savior or a messiah. Before starting the being a Hitler as a powerful entity, we have to take some brief account about the Hitler. Hitler was belonged from a very humble family background, born in 1889 in Austria, and his youth was in very poor condition. And First World War broke. He enrolled as an army man and acted as a messenger in front. Became a corporal due to his courageous task and get many medals for bravery. In the First World War, when the Germany was defeated, then he was become very horrified about this defeat of German army and the people. And by the Versailles Treaty, this made him furious. He was become very angry and with a deep pain. In 1990, he joined a small group called German Workers' Party, and he subsequently took over the organization, renamed this organization with the National Socialist German Workers' Party, and this party, as a short name, is called Nazi Party, and this party is being the sole ideologue of Hitler, and this ideology is also called Nazism, and Hitler's ideology is a synonym for that. And this is importantly said to be the National Socialist German Workers' Party, Nazi Party, importantly. And First World War broke out enrolled with this Hitler was work as a corporal, and corporal as a lower level officer in military. And after the defeat of First World War, he was very anxious about that. And then after 1923, Hitler has make a plan to seizure of power of Bavaria and move to the Berlin and capture the power. But unfortunately or fortunately, he had not get succeed. He failed, and he arrested by the Weimar Republic government, and is get to prison, and on the charge of treason. It means देशद्रोह गद्दारी के चार्ज में अरेस्ट किया गया था. Finally he was released without any severe punishment. And earlier 1930, during the Great Depression, Nazism became a mass movement, because the people's sufferings have providing a opportunity for the Nazi party to get mileage of the people's atrocities, and make a propaganda that you have to elect us, and we just wake up out this all the problems whatever you are suffering from. So Hitler was
getting power and popularity and influence in the period after the Great Depression. And this data says 1928 Nazi Party have get 2.6% vote in the German Parliament Reichstag, but in the by the 1932 he had become the largest party with a 37% vote. And finally Hitler get the power, and ultimately the Hitler was a powerful speaker, you know that. His passion and his word moved the people. Hitler was undoubtedly Hitler was a great orator. He's a powerful speaker. His passion in the word and his body attire and his disciplined organizational skill have just spectacular and impressed the people. And he promised to build a strong nation and the injustices of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. He has promised to the German peoples to restore their dignity and to just get revenge from the Allied forces regarding all atrocities and all sufferings, all humiliations made by the Allied forces and all conspiracies against the German and German peoples. So it was a better alternative that he projected before the German people. Hitler devised a new style of politics. He was a new kind of strategical order he come with. He have made in a very disciplined, organized political organization, and he understood the significance and rituals and expectation spectacle of mass mobilization. वो जो परंपराओं और बड़े स्तर पे जो संगठन के आधार पे पब्लिक की गैदरिंग होती है, उसकी जो क्षमता और उसके प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से वो जानता था. सो ही वॉज अ master organizer, and he had made some kind of ritual and presentation strategy, and people's meeting with the demonstrate the support of Hitler instead of the sense of unity among the people. And red banner and the swastika, a Nazi party have ritual around applause after the speeches. जब भी कोई स्पीच हो उसके बाद एक डिसिप्लिन तरीके से ताली बजाना, एंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ हिज पावर, और उसके पावर उसके प्रभाव को दिखाता था. नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा और सेवियर. नाजी के जितने भी प्रचार प्रसार थे उसके माध्यम से बहुत ही दक्षतापूर्वक स्किलफुली हिटलर को एक मसीहा, एक सेवियर, एक तारणहार के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, एंड जो कि arrived as a people for to people to deliver to people from their all distresses. इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया है कि जैसे कि वो आ गया तो जनता की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एंड इट्स रीस्टोर the people's pride and dignity, and which is scattered by the acute economic and political crisis. उसने जर्मन जनता को ये बताया कि उसके आ जाने पर जनता की जो सारी समस्याएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब समाप्त हो जाएंगी, और ये जस्ट प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एवरी problem that suffering or suffered by the German peoples. Finally, he have get power in 1932. He's get majority in the Riksdag, and 13th of January 1933 President Hindenburg offered the chancellorship. Chancellorship means prime ministerialship. In German language, the prime minister is just similar to the called the chancellor. The chancellorship have president have welcomed him for the chancellorship, and by then Nazi had managed and rally to
बाय द ये कंट्रोवर्सी टू देयर कॉज, और बहुत सारे ऐसे वाद विवाद और बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गई, स्पेशली द सेट ऑफ डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हिटलर ने आते ही वहाँ पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं थी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। क्या इसमें पहला एक था, द मिस्टीरियस फायर had broke out in the German parliament building the February fascinated this move। mysterious fire, एक ऐसा हुआ कि एक रहस्यमय आग लग गया जर्मन पार्लियामेंट में, जिसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो बहुत सारे कानून के और संविधान वगैरह से संबंधित कोडिफिकेशंस थे, वो सब जल के नष्ट हो गए। तो उसके बाद उसने एक फायर डिग्री, एक नया कानून और नया मसौदा तैयार करके उसको पास करवाया, और सस्पेंडेड द सिविल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली हैज बीन गारंटीड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रेस को आज़ादी दी गई थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, हटा दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। और जस्ट लाइक बैन एंड रिस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड बाय हिटलर एंड टर्न टू हिज आर्क एनिमी, और फाइनली वो अपने जन्मजात शत्रु की तरफ मुड़ा, जिसमें कम्युनिस्ट सबसे महत्वपूर्ण थे। और हॉरिबल पिक ऑफ दिस न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप, उसने कंसंट्रेशन कैंप में इन कम्युनिस्टों को यातना देकर उनको तड़पा तड़पा कर मारने का एक नया यत्न शुरू किया, जो हम आगे देखेंगे। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज मोर सीवियर। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इनेमीज में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सफ़र किया एज ए एथनिक पीपल, द ज्यूज, एज ए पॉलिटिकल अपोनेंट, द कम्युनिस्ट ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया हिटलर के हैट्रेट को और हिटलर के नफ़रत भरे इंसिडेंट्स को। जस्ट 1 million ऑफ द पॉपुलेशन, half a million of population and 1440 पीपल्स इन बचे। एक शहर था डसेल्डॉर्फ, वहाँ पे सिटी की आबादी लगभग 5 लाख थी, और उसने उतना के लोगों को इस तरह से मरवाया और उनको कंसंट्रेशन कैंप में कि 1400 से करीब ही लोग बच पाए। और उसने एक हायरार्किकल ऑर्डर बनाया अपने अनवांटेड पीपल्स का। दे आर 52 टाइप्स ऑफ अनवांटेड पीपल्स, दे आर 52 टाइप्स ऑफ। द 3 मार्च 1933 फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया गया, उसके द्वारा एक कानून बनाया गया, उसको पास। इस एक्ट हैड स्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर, हिटलर के डिक्टेटरशिप को इस एक्ट ने स्टैब्लिश कर दिया। दिस पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन सब बैन कर दिए गए, नाजी पार्टी को छोड़कर, और नाजी पार्टी के एफिलिएट्स वगैरह को छोड़कर सारे बाकी बंद कर दिए गए। मीडिया और आर्मी और जुडिशियरी, इन सब में उसने अपने लोगों को भर दिया। सो दे ऑल organization of economy, media, army, judiciary, they are filled by the Hitler, by their loyal peoples. And finally this special surveillance and security forces were created, new kind of, the order to ensure the Nazi they want, नाजी जो चाहते थे उसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने एक ऐसी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल और पुलिसिंग व्यवस्था शुरू की। एज ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग द रेगुलर पुलिस फोर्स के अलावा एक ग्रीन यूनिफॉर्म एसए और एसटी और एसडी ऐसे कर करके 3-4 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें एक को स्टेट पुलिस, एसएस, स्पेशल प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज, इस तरह से कई संगठन बनाए गए, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, कई तरह के ये अनएस्टेटरी बॉडीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के साथ, जिनको कोई जो किसी को भी हिटलर के और पार्टी के आदेश पर उठा के लाएं और उनको उनके साथ हीनियस एक्ट करे, उनको तड़पाए, उनको जो भी नाजी चाहते हैं उन मनवाने की कोशिश करते। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, रिप्रेशन मोस्ट डेयर्ड क्रिमिनल स्टेट। उसके बाद इस वजह से हिटलर का जो शासन था उसने जर्मनी को एक आपराधिक राज्य में परिणत कर दिया, एक क्रिमिनल स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड पीपल्स हैव डिनाइड टू गस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, और गस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में लोगों को भेजे जाते थे जहाँ पर उनको कंसंट्रेशन कैंप में टॉर्चर किया जाता था, अरेस्ट की जाती थी, इनका कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था,
पुलिस है फोर्स टू एक्वायर पावर रूल विद द इम्प्यूनिटी। और पुलिस जो थी वो बिना किसी नियम कानून के लोगों के साथ बिहेव करती थी और जैसा पार्टी चाहता था वैसा होता था। हिटलर असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी। अब हिटलर जब पावर में आ गया उसने जैसा वादा किया था अपने पीपुल्स को, रिकंस्ट्रक्शन उसने शुरू किया देश में नए तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना। तो उसने एक इकोनॉमिक एडवाइजर एक हैजमर सट को अपॉइंट किया इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। उसने एडवाइस किया कि यू हैव टू जस्ट मेक पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट फंडेड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रोग्राम्स शुरू करें ताकि लोगों को उससे इनकम हो और उसको इन लोगों को आय प्राप्त हो और उनके पास खर्च करने के लिए पैसे हो। फॉरेन पॉलिसी हिटलर रिक्वायर्ड क्विक सक्सेस, लेकिन फॉरेन पॉलिसी उसने खुद से डिज़ाइन किया। ही पुल्ड द लीग ऑफ द नेशंस इन 1933 में वो अपने लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकल आया। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था कंट्री का, उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद रिकैप्चर द राइनलैंड जो कि फ्रांस और अलाइड फोर्सेस ऑस्ट्रिया के द्वारा कैप्चर किया गया था, उसको उसने ले लिया वापस। एंड अंडर द स्लोगन ऑफ वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, और उसने स्लोगन दिया एक देश एक साम्राज्य और एक नेता। एंड वॉस्ट जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया गोगल टू इंटायर कंट्री। उसने चेकोस्लोवाकिया से स्टूडेंट लैंड से लेकर बाकी पूरे देश को एक यूनाइटेड डिक्टेटरल स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। हेड ऑफ अनस्पोकन स्पोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने शुरुआत में इस पर कुछ बोला नहीं, जिसे क्रिमिनल इग्नोरेंस कहा जाता है हिस्ट्री में। कंसिडर टू ए वर्साई एज ए टू हरास, उसने इस बात को माना था कि वर्साई ट्रीटी जो था वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया द्वारा सचमुच में बहुत ज़्यादा जर्मन लोगों के ऊपर एक हरासमेंट लाइबल की गई थी। हिटलर को उसका एक फ़ायदा मिला। और फाइनली Hitler did not stop here, and Sut have advised Hitler to hesitate investing huge in rearmament and stated without definite financing. सट ने हिटलर को कहा कि आप ये काम मत कीजिए और सेना और आर्मी पे बहुत ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, इसको उससे बचिए। और फाइनली उसे हिटलर को दबाव को सहन नहीं कर पाया, वो फाइनली सट को देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि हिटलर किसी की सलाह को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अल्टीमेटली he have just started a new kind of strategy of economic crisis. Resources were being accumulated through expansion of territory. It was a very new kind of economic strategy to adopt for कि किसी अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके और डेवलपमेंट ना करके हम किसी दूसरे कंट्री के एरिया को कैप्चर कर लें और उसके रिसोर्सेज का यूज़ करें अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए सेना मजबूत होनी चाहिए। एक अजीब सी स्ट्रेटजी कि कोई कंट्री अपनी सेना पर कम खर्च करके अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसकी सेना कमज़ोर होगी। हिटलर ने कहा कि हम अपनी सेना पे ज़्यादा खर्च करेंगे, अपनी डेवलपमेंट पे कम, और उस सेना की ताकत के बल पे हम उस कंट्री को कैप्चर करके और उसकी डेवलपमेंटल जो एंटिटीज़ हैं उनका यूज़ अपने कंट्री के बेनेवोलेंस और डेवलपमेंट में करेंगे। हिटलर है made a new kind of strategy to military strategy to economic prosperity. The Germany invaded the Poland, started war with France and England, and in September 1940 a ट्राईपार्टिट पैक्ट हुआ जर्मनी, इटली और जापान के साथ है, स्ट्रेंथनिंग द हिटलर क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। हिटलर ने एक 3 पक्षों का एक समझिए संधि किया जिसमें थे जर्मनी, इटली और जापान, और इसके माध्यम से उसने क्लेम किया कि हम भी एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हैं। एंड पपेट रिजीम को उसने जर्मनी में इंस्टॉल करके एक लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप को अपने एक्वायर करने की शुरुआत उसने कर दी। 1940 तक आते आते जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था 1939 में, हिटलर वाज अ पिनाकल ऑफ हिज पावर। हिटलर अपनी शक्ति के उरूज पर था, शीर्ष पर था, लेकिन हमेशा ऐसा रहता नहीं। फाइनली हिटलर नाउ मूव टू द अचीव द लॉन्ग टर्म एम कंक्वरिंग ईस्टर्न यूरोप। उसने शुरू किया 1940 के बाद उसने अपनी सेना को मूव किया सेकेंड वर्ल्ड वार के टर्म में ईस्टर्न यूरोप की तरफ और उसको जीतने की
ताकि वो अपनी फूड सप्लाई को इंश्योर कर सके। और इसमें कारण कि ईस्टर्न यूरोप जो था एक बहुत बड़ा फूड सप्लायर था, ग्रेन्स और वीट वगैरह का वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। ब्रिटिश और फाइनली ही अटैक्ड सोवियत यूनियन इन 1941। 1941 ने उसने यूएसएसआर पर हमला कर दिया एंड दिस इज़ द हिस्टोरिक ब्लंडर मेड बाय हिटलर। कहा जाता है कि हिटलर के द्वारा ये वही बड़ा निर्णायक भूल है जैसे कि नेपोलियन के द्वारा वाटरलू में किया गया था। तो वैसे ही नेपोलियन ने जैसे वाटरलू में एक बड़ी भूल की और वो हार गया, वैसे ही हिटलर ने 1941 में यूएसएसआर पर हमला करके उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की और उसके बाद से ब्रिटेन के साथ उसकी लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटेन ने बहुत बड़ी संख्या में एरियल बम्बार्डमेंट शुरू किया जर्मनी पे और रेड आर्मी ने बुरी तरह से क्रश किया जर्मन आर्मी को स्टेलिनग्राद के पास। रेड आर्मी मीन द आर्मी ऑफ द यूएसएसआर, सोवियत रेड आर्मी, and hounded the retreating German soldiers and reached to the heart of Berlin। कहा जाता था कि रेड आर्मी ने जर्मन सोल्जर्स को वो बुरी तरह से पीटा, उस बुरी तरह से उनको मारा कि भागते भागते वो जब बर्लिन तक वापस आ रहे थे तो रेड आर्मी उनको खदेड़ते खदेड़ते बर्लिन तक चली आई और उसने बुरी संख्या में हिटलर को हराया। और मीनवाइल इसी बीच में द रेसिस्टेंट इन्वॉल्व इन द वॉर and unwilling to be against the first economic problem, the first world war। USA सेकेंड वर्ल्ड वार में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं था और वो हेजिटेट कर रहा था उससे। लेकिन फाइनली हुआ ऐसा कि एशिया में जापान have just expanding the power in the east and occupy the Franco-Indian China area of Vietnam, Cambodia, and in Pacific Japan expanded its power and on to Hitler a bombardment of US base Pearl Harbor। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया एंड फाइनली द यूएस हैड बाउंड टू इंटर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब यूएस के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और फाइनली 1945 में हिटलर की हार हुई और उसने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद जापान पर एक एटम बम, जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम की बमबारी की गई हिटलर के यूएस के द्वारा और जिसमें जापान ने भी हार स्वीकार कर लिया और फाइनली 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार विल बी ओवर। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार इसे समाप्त होता है और इसी के साथ हिटलर का भी समापन होता है और जर्मनी को दो भागों में बांट दिया जाता है और इसके साथ जर्मन की पावर को सीज कर दी जाती है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।